Hello everyone, welcome you all here. I am Ankita Singh, and as you all can see on the screen that the chapter name is mentioned here. So student, today we are going to start civics chapter 2. We have already completed chapter 1st of civics. Now today we are going to start chapter 2nd of civics. As you can see the chapter name on your screen. The chapter name is Federalism. The Hindi meaning of federalism is Sanghvad. Sanghvad you can able to understand. Here we can study that how the power is divided in different levels. As you all know that in the previous chapter we noticed that the vertical division of power among different level of government. That is one of the major form of power sharing in the modern democracy that we have already studied in the first chapter. In this chapter, we focus on the form of power sharing, how power sharing is divided into different level. In the early chapter, we studied about the power sharing, and in this chapter, we focus on the different levels where the power is shared. It is most commonly refers to as a federalism. In this chapter, we studied about the what is federalism, what are the features of federalism, how the federalism policies are prevailing in our country, analyze its provision in our country. We also studied about the different types of federalism, different forms of federalism which are prevailing in overall the world with the different economy. And we also studied about different tier of Indian federalism, the third tier system of Indian federalism. We also study about it. And one more topic we are going through in this chapter is decentralization. So student, we will start from the topic federalism. Firstly, I will tell you what is the definition of federalism. You can write the definition also while I am explaining it. I will speak the definition also. You just note it down in your notes so that it can help you to learn the definition and understand what is federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. I hope you understand with this definition. I will explain it in हिंदी also. फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती है अलग अलग लेवल्स पे, जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स यूनिट, मतलब दूसरे दूसरे लेवल पे, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government. As you all know, there are three tier system of government which are prevailing in our country. हमारी कंट्री में थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. आपने देखा ही है और भी चैप्टर्स में पढ़ा है, समझा ऐसे कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम, यू नो दिस. सो इस तरह से पावर्स हमारी अलग अलग लेवल्स में डिवाइडेड होती हैं और उसी को कहते हैं फेडरलिज्म. गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर जो है वो एक हैंड में नहीं रहती, वो अलग अलग लेवल्स में अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड होती है. सो इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स फेडरलिज्म. अंडरस्टूड दिस? Now, the second definition of federal system, you just note it down in your notes. What is federal system? As I told you about the what is federalism, then federal system is the same also. A system of government which divides the power of government between the national government and state and local government. It is also in the same sense.
That is the federalism, the same meaning of the federalism as the federal system. ये भी वही कहता है, एक ऐसा सिस्टम, एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर है वो एक हैंडेड नहीं होती, वो अलग अलग लेवल में अलग अलग हैंड्स में डिवाइडेड होती है. मीन्स नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. Understood this? Generally, the federalism has two levels. ज़्यादातर फेडरलिज्म के दो ही लेवल देखने को मिले हैं. एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट. बट हमारी कंट्री में 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फेडरलिज्म जो है इसके फीचर्स क्या हैं. सो लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. मैं आपको अलग अलग फीचर्स पॉइंट्स में बताती रहूँगी. यू जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोट्स so that it will help you to understand. And I will firstly tell you the points, and afterward I will discuss that points with you. Okay, dear student? जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेडरलिज्म जो है वो अलग अलग लेवल पे वर्क करता है. तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म इज़ द सेम. देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. पहली जो है इसके फीचर्स हैं. फर्स्ट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म इज़ there are 2 or more level of government. You can explain these features with the help of definition of the federalism. फेडरलिज्म की डेफिनेशन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं. तो ये जो फर्स्ट फीचर है इसको आप इसी तरह से डिस्क्राइब कर लेंगे. सेकेंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसको नोट करते रहिए. Different tier of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. इसमें बताया गया है कि डिफरेंट टायर होते हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो एक ही सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर रोल होगा तो ईच एंड एवरी सिटीजन्स के लिए होगा. लाइक द सेम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट इज़ ऑल्सो मेकिंग द लॉज फॉर द सेम सिटीजन, as central government govern the whole country and the state is also come and a part of a central government. So वो भी एक सेम सिटीज़न को ही गवर्न करता है, लेकिन उसमें ज्यूरिडिक्शन का, न्यायपालिका का, विधान पालिका का, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द respective levels or tier of government are specified in the constitution. ये जितने भी न्यायपालिका से जुड़े हुए जो नियम हैं, जो प्रोविजंस हैं अलग अलग टायर ऑफ गवर्नमेंट में, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, ये सारे के सारे स्पेसिफाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लेड है. सो ऐसा कुछ अलग से नहीं है जो कि कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल ला रहा है. ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. नेक्स्ट, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes required to the consent of both the level of government. जो भी प्रोविजंस है, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, मूलभूत प्रोविजंस जो हैं, अगर किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको चेंज होना चाहिए, किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो वो जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपनी सहमति से नहीं इसको कर सकती है. ये होगा सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कंसर्न से. ऑल द लेवल्स
म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द लेवल्स, ये सारे लेवल्स के म्यूचुअल कंसेंट से ही ये हो पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये नहीं पॉसिबल है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न अगर आता है तो वो सबकी कंसल्ट से ही बनता है, इसीलिए यहाँ पे भी अगर उसको चेंज करना है तो वो भी म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर if disputes arises between different level of government in the exercise of their respective power। इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट जो है उसी को पावर होती है इंटरप्ट करने के लिए। किसी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइव होता है किसी भी लेवल पे, तो उसका सेटलमेंट कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। जो हाईएस्ट कोर्ट होती है वो एक एम्पायर की तरह काम करती है हर डिस्प्यूट, हर क्वेरल के बीच में सेटलमेंट करने के लिए। वही पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, सेटलमेंट की पावर कोर्ट के पास ही होती है। 6 पॉइंट हम देखते हैं। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जो रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं। रेवेन्यू के सोर्सेस मींस इनकम्स के सोर्सेस। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे कैसे इनकम के सोर्स आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेस क्या हैं, वो सब क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं ऑलरेडी, जिससे उनकी फाइनेंशियल लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। द फेडरल system thus has dual objective to safeguard and promote unity of the country। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है जो फेडरल सिस्टम है वो उसके डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, दोहरी उद्देश्य होते हैं। पहला क्या है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी, अपनी पूरी कंट्री में सेफ्टी को प्रोवाइड करना और यूनिटी को प्रमोट करना। इसके साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करना और उसको सेफगार्ड करना। तो ये है फेडरल सिस्टम के फीचर्स, फेडरलिज्म के फीचर्स। चलिए अब हम देखते हैं कि फेडरलिज्म किस किस कंट्री में पूरे वर्ल्ड वाइड कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर के बारे में, ये हमारा एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 2 है। और अभी हमने बात की थी फेडरलिज्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, फेडरल सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि फ़ीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के। हमने 7 पॉइंट्स पढ़े फेडरलिज्म के फ़ीचर्स। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको नोट डाउन करते चल सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए बना है ताकि आपको एनसीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो सारे आपको पता चल जाएं। और बोर्ड में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप इजीली उसको अपने वर्ड्स में लिख सकें। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस किन किन कंट्रीज़ में फैला हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं यहाँ एक वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को आप देख सकते हैं, इसको मैं फिर से जूम करके आपको दिखाती हूँ। यस, आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप है। इसमें देखिए फेडरल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है। इंडिया भी एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, रशिया, पूरे एशियन कंट्री में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। सम पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, एंड United States of America is also an example of the federal system of government. Brazil is also having the federation government. Some of the countries of the
Africa also having the federal system of government. As you can see this, South America, there is some of the country like Argentina and Brazil also having the federal system of governance. So student, you can see the federation government is all over there in the country, and this is a type of system which the power is divided in the different levels of government. Okay dear student, I hope you understand this. सो डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये सिविक्स का चैप्टर है एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वाइड चैप्टर, सो द मेन टॉपिक of the starting we have discussed already that what is federalism, what is the system of federalism, how federalism is spread over all the nations, over all the world, and what are the feature of federalism we have discussed in this video. I will provide you the next video of this chapter, and we will discuss what is the next of this chapter in the next video. मैं आपको नेक्स्ट जो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगी. तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है वो ये है, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन, प्लस यू शुड नो अबाउट द वेरियस कंट्री वेयर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स आर प्रिवेलिंग. तो आपको इस मैप की हेल्प से आपको इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम भी आपको पूरे 7 के 7 पॉइंट्स पता होने चाहिए. डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, मैं ऐसा समझती हूँ, इसीलिए इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज़म के आगे के टॉपिक्स, जैसे कि फेडरलिज़म के कितने फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे. तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू लेटेस्ट अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.